Okay, ji. Bismillahirrahmanirrahim. Overview, software architecture overview. So in this section, we are going to see an overview of the software, the concept of software architecture and various technologies, terminologies used and various concepts used in under the umbrella of software architecture. The term software architecture means different things to different people. To the developer, it means the structure of the system being built. So for the developer thinks that whenever some architect is going to deliver him architectures, it means that he is going to define him the overall structure of the system. So this is how a developer perceives a software architecture. To the framework developer, it's the shape of the system that is created with a framework. तो फ्रेमवर्क डेवलपर ही थिंक्स इन टर्म्स ऑफ फ्रेमवर्क. तो वो ये सोचता है कि जी फ्रेमवर्क जो इसने क्रिएट किया है उसकी शेप किस किस्म की होगी. Then to the tester, it's the shape of what needs to be tested. So tester thinks that whatever is being delivered by the architect, then he has to see that what is the overall structure which is required to be tested. For all concerned, it's the high level structure of the solution to the problem that customer or client wants to solve. The definition is the definition of software architecture is that software architecture of a system is a set of structures. I repeat, it is set of structures needed to reason about. It is set of structures needed to reason about the system which comprise software elements, relations among them, and properties. And it's the definition provided by Clements, Bass, and Kazman in their book of 2012. तो जो बेसिक मैसेज है स्लाइड में वो ये है कि सॉफ्टवेयर एलिमेंट के तीन बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं. एक तो सॉफ्टवेयर एलिमेंट्स होते हैं, फिर उन एलिमेंट्स के दरमियान में जो रिलेशनशिप होता है वो चीज़ होता है, एंड देन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ relations, that is properties of both. So this is what is an architecture. Now components of software architecture. The software architecture provides the high level view of the system you are building and must cover following aspects. And what are those aspects? One is the goal and philosophy of the system. पॉइंट ये है कि जब हम सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर बनाते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, क्या 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 कॉन्सेप्ट्स उस आर्किटेक्चर के अंदर हमें डिफाइन करने चाहिए. या अगर मैं कहता हूँ जी आप सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डॉक्यूमेंट बनाएं तो उस डॉक्यूमेंट के अंदर आपने क्या क्या उसके इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए. तो फर्स्ट इज द गोल एंड फिलॉसफी ऑफ द सिस्टम. कोई आप सिस्टम बनाते हैं, आप सोचते हैं यार ये मेरे माइंड में है कि ये इस फिलॉसफी को, फॉर एग्जांपल आप कोई इनोवेटिव एप्लीकेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप फिलॉसफी की बात करेंगे. अगर आप कोई सोशल मीडिया ऐप बना रहे हैं या कोई मोबाइल ऐप बना रहे हैं तो हर ऐप के पीछे कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कोई ना कोई फिलॉसफी होती है. तो वो चीज़ उसमें आर्किटेक्चर में लाजमी आनी चाहिए. देन आर्किटेक्चरल assumptions एंड डिपेंडेंसीज. So assumptions are also very important. For example, you are assuming that you will get 24/7 internet with very high speed. तो ये assumption है कि it is an assumption, और ये assumption important है
क्योंकि इस assumption की बेस पे आप डिसाइड कर रहे होंगे कि आपका आर्किटेक्चर किस तरह का हो जो कि हाई बैंडविड्थ सपोर्ट करता हो। अगर आपने ये assumption की है कि जी बैंडविड्थ इंटरनेट विल बी वीक, तो आपका आर्किटेक्चर assumption डिफरेंट होंगी, आपका बिल्कुल आपका आर्किटेक्चर डिफरेंट किस्म का बनेगा। फॉर एग्जांपल, हम आई रिमेन इन पी एफ एज डायरेक्टर आई टी। वन ऑफ द टास्क वी गॉट के जी आप जितनी भी गाड़ियां इनके अंदर वो लगाएं, लोकेटर्स लगाएं, ताकि हमें पता हो कि जी गाड़ी इस वक्त किस जगह पे है और उसकी फ्यूल कंजम्पशन भी रिकॉर्ड हो रही हो, उसका पाथ भी रिकॉर्ड हो रहा हो। ये उसमें रिक्वायरमेंट थी। नाउ इफ वी बट वन ऑफ द limitation was that their data should not be exposed on internet. This data should not be exposed on internet. अब अगर ये एक लिमिटेशन है, अगर हम ये एक लिमिटेशन हटा देते हैं कि इंटरनेट पे डेटा एक्सपोज हो सकता है, तो हमारा आर्किटेक्चर बहुत सिंपल हो जाता है, क्योंकि आप डेटा सिम्स लगा दें और सारा आप एप्लीकेशन बना सकते हैं। लेकिन अगर आपकी असम्पशन ये है कि आपका डेटा इंटरनेट पे राउट नहीं होना चाहिए, तो आपका बिल्कुल डिफरेंट किस्म की एप्लीकेशन आर्किटेक्चर बनेगा। एंड दीज आर सॉर्ट ऑफ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। तो इसी तरह अगर आप हमने फिर ये assumptions लिखनी होती हैं कि जी इंटरनेट इज कैन नॉट बी यूज, तो जब ताकि जब जब आप कोई उसको आप असेस करे आपके आर्किटेक्चर को, तो ही फर्स्ट नोज what are the assumptions based on which the architecture has been defined. Similarly, dependencies are again important. आप कहते हैं जी ये डिपेंडेंसी है, कोई थर्ड पार्टी ऐप है उस पर डिपेंडेंसी है, क्योंकि हम वो ऐप यूज़ करेंगे, देन दैट डिपेंडेंसी मस्ट बी मेंशन्ड। अगर ऐप आप उस ऐप की डिपेंडेंसी नहीं करेंगे तो आपका आर्किटेक्चर डिफरेंट होगा, और वो उस तरह की आपको जो फंक्शनैलिटी है वो आपको खुद डेवलप करनी पड़ेगी। तो अगेन the dependencies, mentioning of dependencies and decision of dependencies will change the architecture of your application. Then architecturally significant requirements. Architecturally significant requirements are generally non-functional requirements. आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्सेज में पढ़ा होगा, बैचलर में भी, यहाँ भी आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्स शायद पढ़ लिया होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, या भी पढ़ रहे होंगे। तो ये हम जनरली आपने सुना होगा, बुक्स में भी पढ़ा होगा कि जी जो आर्किटेक्चर होता है इट डिपेंड्स ऑन नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स affect the whole system. Non-functional requirements affect the whole system. On the other hand, functional requirement affect only particular functionality. Therefore, non-functional requirements which affect the whole system are more critical as compared to the functional requirements. इसलिए जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, दोज जनरली डिफाइन द आर्किटेक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर, उनकी बेस पे डिसीजन हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ कि जी माई एप्लीकेशन शुड बी ज़ीरो डाउन टाइम, और आई से दैट माई एप्लीकेशन शुड बी अप 24/7 थ्रू आउट द ईयर्स। इट इज़ काइंड ऑफ, यानी हर साल हर वक्त आप रहे, बिल्कुल इसको डाउन होना ही नहीं चाहिए, कभी भी मेंटेनेंस के लिए भी डाउन ना हो, कभी भी ना डाउन हो। तो आपका आर्किटेक्चर इस किस्म का होगा कि आपने बीच में रिडंडेंसीज क्रिएट करनी होंगी, आपने रेप्लिकेशंस करनी होंगी कि जी अगर एक साइड डाउन हो जाती है तो दूसरी अप हो जाए, तो आपका आर्किटेक्चर बिल्कुल डिफरेंट किस्म का होगा। लेकिन अगर आप कोई डाउन टाइम अलाउ करते हैं कि जी ठीक है जी मेंटेनेंस हो सकती है, हो सकता है, तो आपकी कॉस्ट बहुत सी कम हो सकती है, मल्टीपल जगहों पे आपको डुप्लीकेशंस रेप्लिकेशन वगैरह नहीं करनी पड़ेंगी या कम करनी पड़ेंगी। तो इस तरह की रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं जनरली आर्किटेक्चर सिग्निफिकेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनमें नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आ रही होती हैं। इसी तरह उनके अंदर जो है आपकी जो होती हैं इसकी जो इलिटीज कहते हैं हम, कि जी
जैसे मुख्तलिफ में भी जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में एक लिस्ट है 7-8, तो वो सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। तो मे बी इसको मैं फर्दर आपको जब वो आएगा तो वहाँ पे मैं डिस्कस कर लूँगा। Then packaging instructions for subsystems and components. Again, it is a high level concepts कि जी हमने जो है वो ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या होगा, कितने पैकेजेस होंगे, हर पैकेज के अंदर सब पैकेज कौन सा होगा, किस पैकेज के अंदर किस टाइप के कंपोनेंट्स होंगे। तो अगेन दीज आर स्ट्रक्चरल concepts and these should be covered in the architectural document. Then critical subsystem and layers. अब क्रिटिकल सबसिस्टम लेयर हम उनको कहते हैं कि जी अगर वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट ना हुआ वो लेयर या वो सिस्टम, देन द एप्लीकेशन और द होल सिस्टम में फेल। तो इसलिए या उनको इम्प्लीमेंट करना चैलेंजिंग हो, आपको शक हो कि पता नहीं हम जिस तरीके से हम कंसीव कर रहे हैं उस तरह वो चीज़ इम्प्लीमेंट हो सकेगी नहीं हो सकेगी। तो ऑल सच थिंग्स which may lead towards a failure or a probable failure, all these subsystems or layers or components are considered as critical. तो जो critical चीज़ें हैं, जो नॉन क्रिटिकल हैं, जनरल एप्लीकेशंस हैं, आपके पूरे ओवरऑल एप्लीकेशन में कुछ काम, फॉर एग्जांपल लॉग इन की स्क्रीन है, वो एक स्टैंडर्ड चीज़ बन गई है लॉग इन स्क्रीन। इसी तरह आपने सेव एज करना है, कोई चीज़ आपने अपलोड करनी है, डाउनलोड करनी है, दीज आर नाउ सम वेरी स्टैंडर्ड एप्लीकेशंस। ठीक है, लेकिन कोई बहुत ही कोई नई इनोवेटिव कोई चीज़ आ गई थी जी, माउस ओवर के ऊपर जनाब पिक्चर किसी की डिस्प्ले हो जाए, और पिक्चर भी कहीं से क्लाउड से डिस्प्ले होगी, और लॉग इन यूज़र जो वो कॉन्टेक्स्ट अवेयर जिसे हम कहते हैं, कॉन्टेक्स्ट अवेयर जो एप्लीकेशन होती हैं उनमें क्रिटिकलिटी होती है कि आप पता नहीं वो कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, या कोई नई टेक्नोलॉजी आप इनकॉर्पोरेट करने लगे हैं जिसका अभी आपको खुद आइडिया नहीं है कि टेक्नोलॉजी कैसे बिहेव करेगी। तो such things become critical. So such critical things should be mentioned in the architectural document, and it should be part of your software architecture, and it must be mentioned. References to architecturally significant design elements. Again, जो क्रिटिकल डिज़ाइन एलिमेंट्स होंगे उन्हीं को हम आर्किटेक्चरली सिग्निफिकेंट एलिमेंट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी हमारा जो आर्किटेक्चर है इट शुड बी 3 लेयर। तो अब तीनों लेयर इंपॉर्टेंट है, 3 लेयर है, तो इसका मतलब है कि तीनों लेयर्स को हमने एक्सप्लेन करना है। तीनों लेयर पहले तो बतानी है हमने, फिर उन लेयर के अंदर क्या क्या मेजर कंपोनेंट्स हो सकते हैं वो बताने हैं। इन लेयर की आपस में कनेक्टिविटी किस तरह होगी, टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल होंगे या कोई और सोप बेस्ड कनेक्टर्स होंगे या एक्सएमएल बेस्ड कनेक्टर्स होंगे, तो इनकी आपस में कम्युनिकेशन के लिए कौन से स्टैंडर्ड यूज़ किए जाएंगे। तो these all come under architecturally significant design elements. Then a critical system interfaces. Again interface is एक तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंटरफेस का कॉन्सेप्ट होता है, जैसे जावा में इंटरफेस का कॉन्सेप्ट है, बट दिस द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरफेस इज यूज्ड on such places where you want to show or depict the the public appearance of any component. तो जैसे क्लास के, अगर हम किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लास की बात करें तो क्लास के जो उसके उसके जो आर्गुमेंट होते हैं वो पब्लिकली विजिबल होते हैं, क्योंकि उन आर्गुमेंट्स से आपने एलिमेंट्स पास करने होते हैं। इसी तरह उसकी रिटर्न टाइप क्लास की, उसके आर्गुमेंट्स की टाइप्स और नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, रिटर्न टाइप क्लास की, क्लास नेम, दीज आर पब्लिकली एक्सपोज्ड एलिमेंट्स। तो हम कहते हैं जी क्लास का इंटरफेस की, जब हम कहते हैं जी इस पर्टिकुलर क्लास का इंटरफेस क्या है या इस पर्टिकुलर कंपोनेंट का इंटरफेस क्या है, तो हम इंटरफेस उस चीज़ को कहते हैं कि जो कि पब्लिकली सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज में जो चीज़ें पब्लिकली विजिबल होती हैं या एक्सपोज होती हैं। कुछ चीज़ें हिडन होती हैं विद इन क्लास, जैसे प्राइवेट डेटा टाइप्स हैं या प्राइवेट मेंबर्स हैं, those will not count towards the interface, but all those things which are declared public and which are visible to the other classes
or components, those become interface of the component or a class. Again, key scenarios that describe critical behavior of the system. तो स्नैरियो भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में. स्नैरियो में जनरली हम यूज़ केसेस की जब हम बात करते हैं तो हम स्नैरियोज की बात करते हैं, और यूज़ केसेस को नॉर्मल रिक्वायरमेंट से थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिखा जाता है. यूज़ केस को जब आप लिखते हैं तो आप इंटरेक्शन विद द सिस्टम, इंटरेक्शन ऑफ एन एक्टर विद द सिस्टम, आपकी लैंग्वेज इस तरह की होती है. फॉर एग्जांपल आप कहते हैं एक्टर प्रेसेस द बटन, फिर आप सिस्टम की रिस्पांस बताते हैं कि सिस्टम रिस्पॉन्ड्स विद द लॉगिन स्क्रीन या सिस्टम रिस्पॉन्ड्स विद होम पेज. तो आप इंटरेक्शन सिनेरियो में इंटरेक्शन शो करते हैं कि पहले एक्टर ने ये किया या यूज़र ने ये किया, सिस्टम ने ऐसे किया, उसके बाद एक्टर ने ये किया, सिस्टम ने ये किया, फिर एक्टर ने ये किया. तो यू डेवलप अ सिनेरियो. तो आप कोई भी सिनेरियो लेते हैं, आप कहते हैं जी लॉग इन सिनेरियो है, आप कहते हैं कि जी डेटा एंट्री सिनेरियो है फॉर पर्टिकुलर फॉर्म. तो ऑल सिनेरियोज आर अब इन सिनेरियोज में कुछ क्रिटिकल सिनेरियोज होते हैं. तो जो क्रिटिकल सिनेरियोज होंगे जिनमें कोई जिनके अंडरस्टैंडिंग का इशू हो सकता है या जिन पे पूरा आर्किटेक्चर डिपेंड कर सकता है कि जी ये सिनेरियो इस तरीके से होना चाहिए. फॉर एग्जांपल आपने एसएमएस बीच में यूज़ करनी है, आप कहते हैं जी यूज एक स्टैरिक है, इससे जो है यूज़र वो फलाना नंबर सेंड करेगा तो रिप्लाई हमें जो है वो इस तरीके से आएगी. तो इस किस्म के सिनेरियोज जो कि पूरा आर्किटेक्चर डिपेंड कर रहा होता है. फॉर एग्जांपल एसएमएस बेस्ड अगर आपने इंटरेक्शन करनी है तो आर्किटेक्चर बिल्कुल डिफरेंट होगा. अगर आप ऐप बेस्ड इंटरेक्शन कर रहे हैं तो आपका ऐप का आर्किटेक्चर बिल्कुल डिफरेंट होगा. तो इसलिए वो वाले सिनेरियो आपने मेंशन करने हैं जिन पे डिसीजन होना है आर्किटेक्चर का, जिस पे डिसीजन होना है कि आर्किटेक्चर कौन सा होगा. दोज विल बी कॉल्ड द की सिनेरियोज. Okay, so this was a bit idea about important concepts which are catered for in any software architecture document. Now there is concept of views in architectural models. You might have heard 4+1 view architecture. शायद आपने कुछ ने सुना हो, किसी ने ना सुना हो. But in the literature, there is a term which is used as 4+1 view architecture, and it is a popular choice for documenting the architecture. इसका मैं आपको ब्रीफ सा आइडिया देता हूँ. The term architecture views got popularity from Philip Christian 1995 paper. इसका जो पेपर था, it was it's a very popular paper. Architectural blueprints, the 4+ view model view of software architecture, IEEE software 1995. इस पेपर को में क्या कॉन्सेप्ट है वो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में. फॉर एग्जांपल इसने ये बताया था कि जी हमें ना कम से कम 5 व्यूज होने चाहिए. अगर इफ वी हैव टू define a software architecture, then we should create 5 views. अब 5 views में अब 4+1 कह रहा है, टोटल 5 है. तो ये जो सेंटर में आपको नजर आ रहा है यूज केस व्यू नजर आ रहा है, in which we write some scenarios. तो we start our working on architecture from use case views. आपको पता है यूज केस डायग्राम जनरली भी आपने पढ़ा हुआ है या पढ़ा हुआ होगा कि जी रिक्वायरमेंट्स जब ली जाती हैं तो फिर यूज केस डायग्राम बनाते हैं. तो यूज़ केस डायग्राम बनाते हैं, लेकिन यूज़ केस डायग्राम के पास हर यूज़ केस को एलेबोरेट किया जाता है. एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है हर यूज़ केस को लिखने के लिए. उसमें आप एक्सेप्शनल जो पाथ होते हैं वो भी लिखते हैं, और जो रेगुलर पाथ होते हैं वो भी लिखते हैं. तो इस तरह यूज़ केस लिखा जाता है. तो यूज़ केस बट द फर्स्ट थिंग, अब इसमें देखिए दो
कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें। एक है कि कॉन्सेप्चुअल व्यू है और एक है फिजिकल व्यू। तो कॉन्सेप्चुअल में आप देखें तो दो तरह के व्यूज हैं, लॉजिकल व्यू एंड प्रोसेस व्यू। दीज टू व्यूज कम अंडर conceptual view. On the other hand, implementation view and deployment view, these come under physical, come in physical domain. ये conceptual domain है और ये physical domain है। तो हम करते क्या हैं, हम we start from use cases, we then we create logical view. Logical view में हम primarily functionality cover कर रहे होते हैं। लॉजिकल व्यू बनाने के बाद फिर वी मूव टूवर्ड्स प्रोसेस व्यू एंड इम्प्लीमेंटेशन व्यू। प्रोसेस व्यू में जनरली हमारा फोकस होता है ऑन नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स लाइक परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी, थ्रूपुट। तो इनको हम इन इस तरह की चीज़ें हम नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स से रिलेटेड जो डिज़ाइन होता है वो बिल्ड किया जाता है प्रोसेस व्यू में। और इम्प्लीमेंटेशन व्यू में जनरली हम वी फोकस ऑन कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। मींस के कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट क्या चीज़ होती है? एनीबॉडी फ्रॉम द क्लास? जी ऑन, सुना हुआ नाम ये? इसका थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन बाय वर्ड समझ आ रही है कि क्या किस तरह कॉन्फ़िगर किया जाएगा सिस्टम को, लेकिन आइडिया उसका नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। और मकसद इसमें होता है कि आप डिफरेंट वर्जन्स को किस तरह कंट्रोल करेंगे, क्योंकि आप सॉफ्टवेयर जब डेवलप करते हैं तो ये क्रिएट बिल्डिंग न्यू वर्जन्स। आप एक वर्जन बनाते हैं हर रोज़, फॉर एग्जांपल एक डेवलपर बैठा हुआ है तो रोज़ाना एक क्लोज करेगा तो एक वर्जन होगा उसका, अगले दिन आएगा तो आगे काम करेगा तो एक और वर्जन बन जाएगा। तो वर्जन जनरली जो सॉफ्टवेयर की वर्जनिंग और वर्जन मैनेजमेंट होती है, दोज प्राइमरीली कम्स अंडर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। और ये इतना क्रिटिकल काम है कि अगर इसको प्रॉपरली और सिस्टमेटिकली ना किया जाए तो वो, और स्पेशली जब मल्टीपल डेवलपर्स काम कर रहे हो तो आपने अब दूसरों की डिपेंडेंसी भी आ जाती है डेवलपर्स के काम की, फिर एक दूसरे पे डिपेंडेंसी के बाद फिर वर्जन के क्लैशेस शुरू हो जाते हैं। तो ये बड़ा क्रिटिकल काम होता है। तो जनरली क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन के दौरान ये सारे काम करने होते हैं, इसलिए इम्प्लीमेंटेशन व्यू में जनरली फोकस होता है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट पे। एंड देन इज डिप्लॉयमेंट व्यू, फिजिकल डिवाइसेस पे किस तरह डिप्लॉयमेंट होगी। तो दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ 4+1 व्यू आर्किटेक्चर। दीज आर 4 व्यूज एंड वन इज सेंटर में। क्यों यूज केस को रखा गया? बिकॉज the input from use cases is needed in all the views, in logical view, process view, implementation view and deployment view as well. Now in this lecture I'm going to explain that how we can make use of UML. How can we make use of UML for creating 4+view architecture? ये एक डॉक्यूमेंट नीचे रेफरेंस दिया हुआ मैंने, अप्लाइंग 4+view आर्किटेक्चर विद UML 2+X कह लें या 2.5 भी इसी में आएगी। ये उसका लिंक है। Spark System is one of a leading UML tool developer company from Australia. ये उनके वेबसाइट पे ये पेपर पड़ा हुआ था, उस पेपर से मैंने ये कंटेंट लिया है। एंड यू कैन उस पूरे पेपर से भी गो थ्रू कर सकते हैं। तो ये तो जनरल कॉन्सेप्ट है। आगे हम देखते हैं कि UML कैसे यूज हो सकती है ये 4+view आर्किटेक्चर बनाने के लिए। First of all, starting from the logical view. Logical view describes the system behavior in terms of structural components. जब हम कहते हैं structural component, इसका क्या मतलब है? Elements, abstractions, separation of concerns and responsibilities. These are the concepts which come under while we define the structural components. By the way, a class diagram, package diagram, these are the concepts which we say that these are structural modeling concepts.
जिसमें हम स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे होते हैं, हायरार्कीज बना रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि हमने ये डिज़ाइन बनाया कि ये देयर विल बी अ टॉप लेवल पैकेज, देन देयर विल बी सब सिस्टम्स इन ईच पैकेज। हर पैकेज के अंदर एक सब सिस्टम होगा, फिर उसके अंदर सब पैकेज और फर्दर पैकेजेस होंगे। तो उसके बाद फिर जब पैकेजेस की हायरार्की हम बना लेंगे, और इट विल बी ड्राइव फ्रॉम द आर्किटेक्चर, क्योंकि इसी से पता चलेगा कि आर्किटेक्चर हमारा जो है इम्प्लीमेंटेशन आर्किटेक्चर क्या होगा, या इम्प्लीमेंटेशन व्यू क्या होगा। तो उसके बाद फिर क्लासेस आ जाएंगी कि जी ठीक है, फिर अब पैकेजेस में क्लासेस या है या बाकी चीज़ें हैं वो किस तरीके से हम उसके अंदर प्लेस करेंगे। तो वो whenever we create a large application we organize right from the start। ऐसे ही है जैसे हम कोई बड़ा डॉक्यूमेंट थीसिस लिखने जा रहे हों, आप लोगों ने प्रोजेक्ट FIP के डॉक्यूमेंट्स लिखे होंगे। जब बड़ा डॉक्यूमेंट लिखना होता है तो उसको प्रॉपरली प्लान किया जाता है कि जी इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, हेडिंग्स क्या होंगी, चैप्टर्स कौन से होंगे, फिर सब हेडिंग्स क्या होंगी, ठीक है, पूरा लेआउट, और फिर कैसे उसको बिल्ड किया जाता है। इसी तरीके से किसी भी सॉफ्टवेयर को भी इस तरीके से प्लान किया जाता है। सो दैट्स वाई लॉजिकल व्यू में हम ये वाला काम कर रहे होते हैं। अब विच UML डायग्राम्स कैन बी यूज वाइल मॉडलिंग लॉजिकल व्यू। अब यहाँ पे देखें पैकेज डायग्राम लिखा हुआ है। सो जनरली वी स्टार्ट फ्रॉम पैकेज डायग्राम, क्योंकि हमने एक तो पहले स्ट्रक्चर डिसाइड करना होता है कि जी क्या स्ट्रक्चर होगा हमारी एप्लीकेशन का। देन जनरली जब हम पैकेज स्ट्रक्चर पूरा बना लेते हैं, देन वी स्टार्ट फ्रॉम द क्लास डायग्राम। और फिर जहाँ भी हमें क्लास का इंटरनल स्ट्रक्चर शो करना हो तो कंपोजिट स्ट्रक्चर डायग्राम यूज़ कर लेते हैं। अगर किसी क्लास के इंस्टेंस लेवल पे क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी, ऑब्जेक्ट्स आपस में कैसे रिलेट होंगे, तो हम ऑब्जेक्ट डायग्राम बना लेते हैं। और अगर हमने कोई डिफरेंट स्टेट्स बतानी हो कि जी जब कि ये एक पर्टिकुलर क्लास है किन किन स्टेट्स में रहेगी जब इसको इंस्टेंशिएट करेंगे हम, तो देन फॉर दैट पर्पज वी मे यूज़ स्टेट डायग्राम। If you see the formal explanation, we start with the class diagram to model the system. We use package diagram to logically group diagrams। तो जो diagrams हैं उनको logically हम मुख्तलिफ packages में रखते हैं ताकि logically organize हो हमारा सारा पूरा मॉडल। ऑप्शनल यूज क्या है, ऑब्जेक्ट डायग्राम व्हेन रिलेशनशिप्स। ऑब्जेक्ट डायग्राम को कब यूज करते हैं, व्हेन रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस नीड टू बी एक्सप्लेन्ड थ्रू इंस्टेंसेस। जब हमने इंस्टेंसेस से एक्सप्लेन करना हो कि इंस्टेंसेस कैसे आपस में एक दूसरे से रिलेट होंगे, देन वी मेक यूज ऑफ ऑब्जेक्ट डायग्राम। एंड स्टेट चार्ट डायग्राम यूज करते हैं व्हेन इंटरनल स्टेट ऑफ स्पेसिफिक क्लास आर टू बी एक्सप्लेन्ड। तो किसी पर्टिकुलर क्लास का अगर डिफरेंट हमने बतानी होगी किस किस स्टेट में रहेगी क्लास किस किस वक्त, तो वो हम स्टेट मशीन डायग्राम से बात कर सकते हैं, स्टेट चार्ट से। देन कंपोजिट स्ट्रक्चर डायग्राम है। कंपोजिट स्ट्रक्चर डायग्राम व्हेन पार्ट्स ऑफ द क्लास एंड रिलेशनशिप बिटवीन पार्ट्स टू बी मॉडल्ड। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी क्लास के अंदर इंटरनली कितने पार्ट्स होंगे, ये अगर हमने बताना हो कि जी इसमें और कौन कौन सी इंस्टेंसेस फॉर एग्जांपल दूसरी क्लासेस के इसके अंदर आपस में कौन कौन से होंगे, आपस में वो कैसे रिलेट करेंगे अपने एक दूसरे के साथ, तो इस किस्म की चीज़ें कंपोजिट स्ट्रक्चर डायग्राम में एक्सप्लेन की जाती हैं। जनरली दीज आर द 5 डायग्राम्स which it is sort of recommendation from Spark system that we can use these 5 kind of diagram for creating logical view। Any question at this stage? जी सो तो नहीं गए? नहीं सर, जाग रहे हैं। जाग रहे हैं, पता चले सर ये मैं कंपोजिट स्ट्रक्चर डायग्राम्स में यूएमएल की कौन सी डायग्राम फॉल करती हैं सर? ये यही डायग्राम है, यही डायग्राम का नाम यही है, कंपोजिट स्ट्रक्चर डायग्राम। तो दैट्स वाई फिर मैंने ये सारी डायग्राम में डिस्कस करूंगा ताकि आपको जनरल आइडिया हो जाए कि किस डायग्राम को कहाँ यूज़ किया जाता है। जनरली बैचलर्स में 2-3 डायग्राम्स ही
कवर की जाती हैं, यूज केस पकड़ लेते हैं, क्लास डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम, स्टेट मशीन डायग्राम, तो ये 4 पॉइंट है, लेकिन UML हैज़ 13 डायग्राम्स। तो इसलिए एक पूरा एक जो उसका स्कोप है ना, वो हम इधर देखेंगे कि कौन कौन सी डायग्राम्स हैं UML की, बट वी विल सी इट इन लेटर लेक्चर्स। अच्छा जी, तो आगे चलते हैं। प्रोसेस व्यू। प्रोसेस व्यू एड्रेसेस नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि इट एड्रेसेस नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स सच एज परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी, थ्रूपुट, concurrency, fault tolerance, etc. And a process view decomposes system processes into tasks, और आप threads भी कह सकते हैं, क्योंकि it maps structural components from logical view to processes and threads that represent tasks. तो task further process और thread की फॉर्म में होते हैं। वजह यह है कि क्योंकि हम ये जो स्केलेबिलिटी, परफॉर्मेंस और थ्रूपुट के इश्यूज को हैंडल करते हैं जनरली मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट करके या मल्टीपल प्रोसेसेस के ज़रिए। तो इस वजह से जब आप इन चीज़ों को हैंडल करना होता है, देन वी आर रिक्वायर्ड टू डिस्कस how many processes will be initiated, how many threads will be created to handle such non-functional requirements. तो इसलिए फिर लॉजिकल व्यू के बाद हम ये इसकी एनालिसिस करते हैं जी, प्रोसेस थ्रेड्स वगैरह कैसे बनाने हैं। अब UML कैसे हेल्प कर सकती है हमें। तो here you can see you have some initial scenarios available to you. तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन मेक सीक्वेंस डायग्राम और कम्युनिकेशन डायग्राम बना सकते हैं। सीक्वेंस डायग्राम या कम्युनिकेशन डायग्राम बना सकते हैं। दीज आर इंटरचेंजेबल। कुछ UML टूल्स ऐसे हैं जो कि कम्युनिकेशन डायग्राम को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं सीक्वेंस डायग्राम में, और सीक्वेंस डायग्राम को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं कम्युनिकेशन डायग्राम में। तो देयर आर वेरियस टूल्स विच दीज आर बेसिकली इक्विवेलेंट बट अ डिफरेंट type of representation, but these are equivalent conceptually. So generally we use sequence diagrams or communication diagram. Later on, if we have to elaborate further some timings, etc., then we may use timing diagrams. Then we can also, where needed, we can create, अगर हमने sequences कहीं हमने बताने हैं, activity diagram को use कर सकते हैं। और all these diagrams can be grouped together by creating an interaction overview diagram. उसके अंदर ये सारी बना के, ताकि ओवरऑल एक पिक्चर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मुख्तलिफ इंटरेक्शंस आपस में चल रही होंगी। तो इसको भी हम देखेंगे, इंटरेक्शन ओवरव्यू डायग्राम। अगेन इट इज़ एन इंटरेस्टिंग डायग्राम। तो लेट्स सी द फॉर्मल डिस्कशन। The use either sequence or communication diagram for modeling simple interactions in use case realization. तो ये scenarios में basically हम use cases ही होते हैं, उनकी अब realization हमने depict करनी है through modeling. तो we can use either sequence diagram or communication diagram. Now what optional uses are there? You can add activity diagram to realize scenarios where business logic is a sequence of actions and involves branching and parallel processing. Generally, active diagram is a popular diagram for depicting business processes, क्योंकि इसमें ब्रांचिंग भी होती है, इसमें कंकरेंसी भी है, और इसमें आप सिम लेन्स वगैरह भी बना सकते हैं, मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज शो कर सकते हैं। तो इसलिए इट इज़ अ पॉपुलर चॉइस फॉर बिजनेस मॉडलिंग या बिजनेस प्रोसेस की मॉडलिंग। तो अगर इस तरह की कोई चीज़ हमें ज़रूरत है कि हमने अपना स्नैरियो को एक्सप्लेन करना है कि जी पहले ये होगा, उसके बाद ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, तो एक तरह का फ्लो अपने डिपिक्ट करना है। तो फॉर डिपिक्टिंग दैट फ्लो, एक्टिव डायग्राम इज़ very effective diagram.
You can also add timing diagram where modeling for performance. तो टाइमिंग डायग्राम भी कमिंग लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे कि क्या इसकी यूटिलिटी हो सकती हैं. Then for complex scenarios that can be composed of other scenarios such use interaction overview diagram. तो अगर बहुत सारी आपकी डायग्राम बन रही हैं तो अब उनको समराइज करना है आपने और एक सिंगल व्यू क्रिएट करना है, तो देन वी यूज इंटरेक्शन ओवरव्यू डायग्राम. So in summary, the message of this slide is that for creating process view, जनरली इन डायग्राम्स को हम बिहेवियर डायग्राम कहते हैं. तो प्रोसेस में भी हम बिहेवियर शो बना रहे होते हैं, क्योंकि जहाँ भी सीक्वेंसेस आ जाते हैं या टाइमिंग रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं, दीज ऑल कम अंडर अ बिहेवियर. तो ये डिफरेंट तरह की बिहेवियर डायग्राम्स हैं which can be used for modeling the process view of 4+ view software architecture. Then implementation, sometimes we also call it development view. एक्चुअल जब डेवलप कर रहे होते हैं डेवलपर्स और डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स बना रहे होते हैं, जार्स बना रहे होते हैं, वार्स बना रहे होते हैं, या डिफरेंट कोई एपीआईज बना रहे होते हैं, क्लासेस क्रिएट करके उनको कंपाइल कर रहे होते हैं. तो these are implementation activities. These come under implementation view. So implementation view maps structural components from logical view to physical software packages. अब कॉन्सेप्चुअली तो हम लॉजिकली तो हम कहते हैं जी ये क्लास होगी, ठीक है, लेकिन वो क्लास ने सेव किस तरह होना है, वो क्रिएट होके कंपाइल्ड फॉर्म में कैसे हो लगेगी, या अगर सेट है 5-6 क्लासेस का जो एक पैकेज में डाली हुई है, तो उनका कंबाइंड जो सेट होगा वो कंपाइल्ड वर्जन जो होगा उसका क्या नाम होगा. इस किस्म के सवालों के जवाब इसमें होते हैं. It describes dependencies needed to assemble physical system. अब जब भी हम इम्प्लीमेंटेशन में जाते हैं तो देयर आर वेरियस डिपेंडेंसीज. अगर हम जावा की बात करें तो जावा की जो लाइब्रेरी है, अगर आपने स्ट्रिंग फंक्शन भी यूज़ कर लिया तो इट मीन्स यू आर यूजिंग स्ट्रिंग लाइब्रेरी क्लास. तो डिपेंडेंसीज लाइब्रेरी क्लासेस की तो आती ही आती हैं. तो वो डिपेंडेंसीज भी कई जगहों पे ज़रूरी हो जाती हैं मेंशन करनी, कई जगहों पे आप अज्यूम कर लेते हैं कि ठीक है जी इट इज़, इसको मॉडलिंग में बताने की जरूरत नहीं है, इट इज़ वेल अंडरस्टूड बाय द डेवलपर्स और डिप्लॉयमेंट पीपल्स. देन एड्रेसेस कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, जैसे मैंने आपको बताया था कि जनरली जब डेवलपमेंट हो रही होती है तो आप समझ लें कि हर घंटे 2 घंटे बाद एक नया वर्जन आप बना रहे होते हैं और उसको सेव कर रहे होते हैं, ताकि आपको कभी भी रिवर्ट बैक करना पड़ जाए पुराने वर्जन पे. जो लॉजिक आपने लगाई है, आपने पता चला नहीं वो पुरानी लॉजिक ठीक थी, ये लॉजिक गलत हो गई है, तो आप क्या करेंगे, आप रिवर्ट बैक करेंगे पुराने वर्जन पे. तो इसलिए वर्जनिंग बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को आना चाहिए, और उसकी हैंडलिंग भी आर्किटेक्चर लेवल पर भी होती है. लेट्स सी a sample diagram which is related to an implementation view. तो यहाँ पे आप देखें कि फॉर एग्जांपल दिस इज एन आर्टिफैक्ट, एक फाइल है जिसकी .var एक्सटेंशन है, .var बुक क्लब ऐप .var. ठीक हो गया. अब इसका इंटरनल स्ट्रक्चर ये है कि इसके अंदर एक फोल्डर है, इस फोल्डर का नाम है web.nif, फिर एक फाइल है web.xml है, फिर एक और फोल्डर है lib के नाम से. इस फोल्डर के अंदर फिर जार फाइल्स पड़ी हुई हैं, 2 जार फाइल्स पड़ी हुई हैं, तीसरी 3 जार फाइल्स पड़ी हुई हैं. तो इट इज़ स्ट्रक्चर. और अब ये देखें कि ये इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रक्चर है कि जब, और ये लॉजिकल स्ट्रक्चर है कि जब हमने लॉजिकली कंसीव किया था लॉजिकल व्यू में कि भी एक हम कंपोनेंट बनाएंगे, उसका नाम हम रख लेते हैं शॉपिंग कार्ट, और एक हम कंपोनेंट बनाएंगे जिसको रख लेते हैं ऑर्डर्स, और इनके दरमियान में ये डिपेंडेंसी होगी एक तरह की कि जी इसमें डिपेंडेंसी होगी इस तरह की
कि जी ये एक कंपोनेंट दूसरे पे डिपेंड कर रहा होगा। ठीक हो गया। तो अब हम ये बता रहे हैं कि ये एक द रिलेशनशिप मैनिफेस्ट के नाम से। इसका क्या मतलब है कि ये जो कंपोनेंट है इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो हो रही है वो शॉपिंग कार्ट डॉट जार फाइल बनेगी इस कंपोनेंट की, और वो फोल्डर्स में इस हायरार्की में पड़ी हुई होगी। इसका कंपोनेंट जब इम्प्लीमेंट होगा तो ये ऑर्डर्स डॉट जार फाइल बनाएंगे और वो ये लिब फोल्डर में पड़ा हुआ होगा। सो दिस काइंड ऑफ डिटेल्स these kind of details are shown। अब इसका लॉजिकल व्यू के साथ एक ट्रेसेबिलिटी भी नज़र आ रही है हमें, और उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो मैनिफेस्टेशन है वो भी नज़र आ रही है कि इम्प्लीमेंट होगी उसका नाम क्या होगा, उसकी लोकेशन क्या होगी, ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं हमें। तो अगेन सर जी जी सर ये लिव फोल्डर बाय डिफ़ॉल्ट होता है, या हम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, या हम फिर इसके अलावा भी कोई और हो सकता है जहाँ पे हम ये फाइल्स को प्लेस कर सकते हैं? ये तो देखें पर्टिकुलर एग्जांपल सी मैं दे रहा हूँ ना समझाने के लिए इम्प्लीमेंटेशन व्यू। तो ये अब जे 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 डबल ई का स्ट्रक्चर है। जे डबल ई में यही स्ट्रक्चर यूज़ हो रहा होता है, लेकिन है कि मे बी पीएचपी में काम कर रहे हैं तो कुछ और स्ट्रक्चर होगा, आप किसी डॉट नेट पे काम कर रहे हैं कोई और स्ट्रक्चर होगा। तो एक एग्जांपल है जनरल जस्ट टू एक्सप्लेन कि वंस वी से इम्प्लीमेंटेशन व्यू तो इसका मतलब क्या होता है। और जब हम कहते हैं जी लॉजिकल व्यू के साथ उसको आप लिंक भी कर लेते हैं या ट्रेसेबल बना लेते हैं, तो वो अब जैसे मैनिफेस्ट रिलेशनशिप से हम बता रहे हैं कि लॉजिकली जो चीज़ कंसीव की थी उसको हमने इम्प्लीमेंटेशन में किस तरीके से स्ट्रक्चर किया है। तो ये कॉन्सेप्ट मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। अब स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है, उस पर डिस्कशन नहीं है हमारी कि स्ट्रक्चर में फोल्डर के अंदर फोल्डर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, किस फोल्डर का क्या नाम होना चाहिए, ये ऐसी कोई बात नहीं है। इट्स जस्ट कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन, टेक्नोलॉजिकल डिस्कशन हम नहीं कर रहे वैसे। फॉर सेक ऑफ इंटरेस्ट ये J2EE का जो जब आप वेब एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, लेकिन ये डिफरेंट भी हो सकता है, इसको चेंज भी कर सकते हैं आप। कुछ डिफ़ॉल्ट नाम चल रहे होते हैं, कुछ आप चेंज कर देते हैं बीच में। ठीक है जी, है एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा जी आगे चलते हैं। आर्किटेक्चरल व्यू, डिप्लॉयमेंट व्यू। अब डिप्लॉयमेंट व्यू आ गया। डिप्लॉयमेंट व्यू मैप्स प्रोसेसेस एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स टू हार्डवेयर नोड्स। अब डिप्लॉयमेंट व्यू में हार्डवेयर भी अब डिपिक्ट करते हैं कि जी हमारे जो एक्चुअल जार फाइल्स बनाई थी तो वो कहाँ पे डिप्लॉय होंगी, हार्डवेयर में कितनी लोकेशंस होंगी, किस किस टाइप के हार्डवेयर होंगे, वो चीज़ें आ जाती हैं डिप्लॉयमेंट व्यू में। एंड इट डिस्क्राइब्स कम्युनिकेशन पाथ बिटवीन नोड्स। और हार्डवेयर की कम्युनिकेशन होगी, उनके पाथ्स किस तरह के होंगे, इस किस्म की चीज़ें आ जाती हैं। लेट्स सी एन एग्जांपल। नाउ दिस इज ऑल यूएमएल। ये भी आप ध्यान में रखें कि ये सारी यूएमएल से मॉडलिंग हुई हुई है। ठीक है। तो डिप्लॉयमेंट में देखें तो डिप्लॉयमेंट में एक ये आउटर पैकेज नज़र आ रहा है आपको। आउटर पैकेज के अंदर फिर हमने एक ये नोड का सिंबल है, एक हमने आउटर नोड बनाया, इसमें हमने डिवाइस स्टीरियोटाइप यूज़ कर रहे हैं और हमने इसका नाम रख दिया है सन फायर XYZ सर्वर। ठीक है। अब हम टेक्नोलॉजिकल लेवल पे चले गए हैं डिप्लॉयमेंट व्यू में कि हमने इस सन का ये वाला सर्वर यूज़ करेंगे, फिर उसके अंदर ये JSP सर्वर टॉम कैट ये रन हो रहा होगा, फिर टॉम कैट के अंदर फिर एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट होगी, कैटलीना सर्वर कंटेनर होगा एक इसके अंदर, और कंटेनर में फिर क्या होगा कि ये एक वार फाइल पड़ी हुई होगी, ये दो जार फाइल्स पड़ी हुई होंगी, और साथ ही हम ये बता रहे हैं कि ये जो वार फाइल है ये, और साथ ही ये डिप्लॉयमेंट स्पेसिफिकेशन होगी। ठीक है, जो डिपेंड कर रही होगी वार फाइल पे। इसी तरह जो ऑनलाइन ऑर्डर्स का जो लॉजिकल कंपोनेंट है वो कंपोनेंट जो मैनिफेस्ट हो रहा होगा वो ये वार फाइल इसको मैनिफेस्ट कर रही होगी या रियलाइज कर रही होगी या इम्प्लीमेंट कर रही होगी। मैनिफेस्ट का ये मतलब होता है। तो वी आर वेरी, बिल्कुल छोटी सी डायग्राम में बड़ा इफेक्टिवली हम एक स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि जी डिप्लॉयमेंट में क्या सूरत हाल बनेगी। अब राइट साइड पे देखें
एक हमें डिवाइस का नोड यूज़ कर रहे हैं, हम कहते हैं जी एक सन स्पार्क सी सर्वर होगा, इसके अंदर एक डेटाबेस ओरेकल 10G के नाम से रन हो रही होगी, फिर इसमें डिफरेंट स्कीमाज होंगे, एक यूज़र स्कीमा होगा, ऑर्डर स्कीमा होगा, इन्वेंट्री स्कीमा होगा। अब दोनों नोड्स हैं, एक नोड ये है फायर सर्वर का, एक नोड है सन स्पार्क सर्वर का। आज दोनों नोड्स हम बता रहे हैं दीज टू नोड्स विल बी कनेक्टेड थ्रू TCP/IP प्रोटोकॉल, और ये कम्युनिकेशन पाथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम कि TCP/IP प्रोटोकॉल पे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होंगे। तो यू कैन सी हाउ इफेक्टिवली we are depicting the deployment of our application. ठीक है जी, any question on this slide? ठीक है जी, आई होप सोएगा नहीं आप, कुछ थोड़ा सा हाँ हूँ कर दिया करें ताकि मुझे ये फील हो कि जाग रहे हैं आप तो। जी सर, समझ आ गया। क्लियर है सर? अच्छा चलें, कुछ बोल दिया करें ताकि मैं भी परेशानी में बैठा हूँ, अकेले ही बैठा हूँ यहाँ भी मैं भी, तो बीच में थोड़ा सा इंटरेक्शन रखा करें। अच्छा जी, now these views are tied together by the architecturally significant use cases, जिसे हम +1 कह रहे हैं। 4+1 पढ़ा ना हमने, 4+1 व्यू, तो जो +1 है दैट इज बेसिकली यूज केसेस often called scenarios. तो the summary of applying 4+1 view architecture with UML is that for logical view we can use class, object, package, composite structure and state machine diagrams. For use case view we can use use case diagrams, or for explaining use cases we can use activity diagrams. Then for implementation view we mostly use component diagram, and for deployment view again we can use component diagram, और deployment view के अपने भी कुछ UML में concepts हैं उनको use कर सकते हैं. And for process view we can use sequence diagram, communication, activity, timing and interaction overview diagram. So ये डॉक्यूमेंट मैंने इसलिए लेक्चर में डाला था कि आई लाइक इट वेरी मच, बहुत ही कंसाइजली उन्होंने एक तरह की एक गाइडलाइन दी है टू द न्यू नोविस पर्सन्स कमिंग इन दिस एरिया, कि किस तरीके से हम UML को इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं फॉर दिस पॉपुलर 4+ व्यू आर्किटेक्चर. Okay, now few more concepts, and the concept is developing software architecture. ये एक section बनाया मैंने, and this section has been picked from a book, Pattern Oriented Software Architecture for Dummies by Robert Henmer, 2013. So it's a very different book. It's a book जिसमें बड़ा इनोवेटिव तरीके से सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को एक्सप्लेन किया गया है सिंपल तरीके से. तो मुझे इसमें से कुछ चीज़ें पसंद आई थी तो वो मैंने डाली, and you will also find it interesting. Okay, so first of all we start from the requirements. As a software engineer, you people know whenever you get some project, you start from the requirements. Either user gives you the requirements, or you conduct interviews, you get documents, then you extract the requirements from the user, then you analyze those requirements, and then you move forward for the design. So this slide is depicting that for architectural level, the requirements at architectural level are generally non-functional requirements. तो जब आप ओवरऑल रिक्वायरमेंट ले लेते हैं तो फिर रिक्वायरमेंट्स में से आप नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को सेग्रीगेट करते हैं, क्योंकि उनकी बेस पे अपने आर्किटेक्चर डिसाइड करना होता है कि आर्किटेक्चर क्या होगा, या आर्किटेक्चर डॉक्यूमेंट डेवलप करना होता है. तो सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द आर्किटेक्चर, कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को हमने कैसे डेवलप करना है, तो वी फोकस ऑन नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स.
अब नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जब हमने लेनी है तो द गाइडलाइन इज दैट गेट स्मार्ट विद योर रिक्वायरमेंट्स, एंड वंस वी से स्मार्ट, व्हाट डू वी मीन? S means specific. You should be specific that the requirements describe a specific characteristic of a system. एक जनरल स्टेटमेंट कि जी सिस्टम शुड बी वेरी फास्ट, ठीक है जी। अंग्रेजी में ग्रामर में तो कोई मसला नहीं है, अंग्रेजी की ग्रामर में कोई मसला नहीं है, सिस्टम शुड बी वेरी फास्ट, ठीक है। बट वेरी फास्ट इज नॉट मेजरेबल, इट इज नॉट स्पेसिफिक, ठीक है जी। अगर ये होता जी सिस्टम्स लेटेंसी शुड नॉट बी मोर देन 4 नैनोसेकेंड, नाउ इट इज स्पेसिफिक, इट इज मेजरेबल, ठीक हो गया। तो इसका ये मतलब है, स्पेसिफिक का मतलब है कि बिल्कुल ऐसी स्पेसिफिक जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वही रिक्वायरमेंट्स काम की होती हैं, जो जनरल किस्म की रिक्वायरमेंट होंगी वो किसी काम की नहीं होती, उससे आप कुछ भी एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। सो द फर्स्ट गाइडलाइन इज दैट यू शुड बी स्पेसिफिक इन योर रिक्वायरमेंट्स, योर रिक्वायरमेंट्स शुड बी मेजरेबल, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है। दे आर रिक्वायरमेंट शुड बी टेस्टेबल एंड ऑब्जर्वेबल इन सम वे। कोई नंबर्स होंगे, कोई टाइमिंग कंस्ट्रेंट्स होंगे कि जी इतना टाइम होना चाहिए, इतनी लेटेंसी होनी चाहिए, उसके एक्चुअल नंबर हो कि जी यूज़र्स 500 से ज़्यादा कनेक्ट हो सकने चाहिए, तो अगेन देयर इज़ अ नंबर यू कैन मेजर कि वाकई 500 से ज़्यादा यूज़र कंकरेंट यूज़र कनेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, यू कैन मेजर इट। अगेन अचीवेबल, ठीक है। ऐसी रिक्वायरमेंट शुड बी रियलिस्टिक within the scope of that particular application or within the scope of that budget, those should be achievable. So that these are realistic and can actually be achieved. Again, these should be relevant. They relate to the problem that the system is supposed to solve. ठीक है, तो सिस्टम कोई किसी एक एक्स पर्पस के लिए हम बना रहे हैं तो उसमें वाई पर्पस की रिक्वायरमेंट्स ना इंक्लूड करने की ज़रूरत है, ना उसको एनालाइज करने की ज़रूरत है। तो इसीलिए जब आप सॉफ्टवेयर बनाते रहें तो हमने स्कोप सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप करने से पहले स्कोप सेट करके क्लाइंट से अप्रूव करवा के स्कोप, देन वी आर सपोज्ड टू मूव फॉरवर्ड। एंड फॉर सेटिंग अप द स्कोप, यूज केस डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टूल, क्योंकि जो यूज केस डायग्राम की बाउंड्रीज होती हैं वो एक तरह का स्कोप सेट कर रही होती हैं कि जी व्हाट ऑल इज इंक्लूडेड, व्हाट ऑल फंक्शनैलिटी इज इंक्लूडेड इन द एप्लीकेशन, ठीक है जी। एंड ट्रैकेबल रिक्वायरमेंट शुड बी ट्रैकेबल, दे प्रोड्यूस स्पेसिफिक थिंग विद एन आर्किटेक्चर दैट कैन बी एबल टू पॉइंट टू लेटर। तो जनरली कॉन्सेप्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ट्रेसिबिलिटी का, तो हम कोशिश आइडियल जो हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, आइडियल ये होता है कि अगर हम रिक्वायरमेंट्स हमने लिखी हैं या रिक्वायरमेंट्स डेवलप की हैं तो रिक्वायरमेंट से हम कोड के आर्टिफैक्ट तक, अगर हमने कोई जार फाइल भी बनाई है जावा की या कोई एक फाइल भी बनाई है, तो ऑल दी आर्टिफैक्ट्स शुड बी ट्रेसेबल फ्रॉम द रिक्वायरमेंट्स। इसी तरह अगर हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो हमारे सारे के सारे टेस्ट should be linked to the requirements, ताकि हम कह सकें जी फलां टेस्ट फलां रिक्वायरमेंट्स को टेस्ट करने के लिए हमने रन किया है। तो ट्रेसेबिलिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। यहाँ पे ट्रैकेबल लिखा है, आप ट्रेसेबल भी कह सकते हैं। So I hope I've been able to explain why we should be smart with our requirements, especially once we are developing an architecture. Any question at this point? हाँ जी, कोई नहीं बोलता। ऑन भाई तुम बाय डिफॉल्ट बोला करो, अब ऐसे ही करना पड़ेगा। राइट सर। यू विल स्पीक बाय डिफॉल्ट, ठीक है। डिफॉल्ट का बटन मैंने आपको सिलेक्ट कर लिया, ब्राउजर पे लिखा हुआ आ रहा होता है ना, सेट एज डिफॉल्ट। सो आई हैव सेट यू एज डिफॉल्ट।
बाकी तो नहीं बोलते। पहले लास्ट सेमेस्टर में उन्होंने वो सब्जेक्ट पढ़ा हम सबने रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग का, तो उसमें ये थोड़ा बहुत इसलिए लोगों को आइडिया समझ आ गया सबको। अच्छा अच्छा अच्छा, पीछे रिक्वायरमेंट वाला पढ़ चुके हैं, चलें ठीक हो गया, दैट्स गुड। आगे चलें जी, चूजिंग अ सॉफ्टवेयर सिस्टम स्टाइल। अब इसमें स्टाइल का भी एक कॉन्सेप्ट है। नाउ अब हम आर्किटेक्चर डेवलप करने का एक सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं। पहले हमने रिक्वायरमेंट की बात की, अब अगला स्टेप होता है कि स्टाइल चूज करें हम। अब नाउ यू नीड टू start thinking about what kind of style and shape the system should have. There are two aspects of system styles. One is architectural style and other one is programming style. आर्किटेक्चर स्टाइल में डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, आगे में भी अगली स्लाइड्स पे भी कुछ मैं आगे लिस्ट डाउन करूंगा। Here I'm giving you few examples. For example, model view controller is a kind of architecture style. Another style is pipe and filter. So these are, and there are various other examples of architectural styles, and they have specific characteristics. They have certain pros and cons. The other is programming style. For example, object-oriented style, procedural style, functional style. तो आपको कई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल से आप वाकिफ़ हैं, प्रोसीजरल स्टाइल से भी आप वाकिफ़ हैं, फंक्शनल स्टाइल से हो सकता है आप वाकिफ़ ना हो। जनरली बैचलर लेवल पे फंक्शनल स्टाइल प्रोग्रामिंग नहीं कराई जाती, लेकिन है कि इट इज़ अगेन डिफरेंट स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग। सर ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में नहीं आ जाती फंक्शनल स्टाइल? नहीं, एक्चुअली अब क्योंकि फंक्शनल स्टाइल की जो प्रोग्रामिंग है ना, वो अब जितनी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है उन्होंने इंक्लूड कर लिया उसके अंदर फंक्शनल के कॉन्सेप्ट, फंक्शनल प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट। अब हम ये कह सकते हैं कि जावा 8 जो आई है, जावा 8 में उन्होंने फंक्शनल प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट डाले हैं, उससे पहले नहीं थे। लेकिन जितनी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, दीज आर नॉट प्योर फंक्शनल स्टाइल लैंग्वेजेस। ठीक है, प्योर फंक्शनल स्टाइल लैंग्वेजेस में फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट ने एक इंट्रोड्यूस किया है एफ शार्प के नाम से। इस तो और भी लैंग्वेजेस होती हैं जो फंक्शनल स्टाइल की लैंग्वेजेस होती हैं। एक मिनट थोड़ा सा मुझे पॉज करें, मैं एक मिनट, मुझे एक मिनट दें, एक मिनट मैं पॉज कर लूँ।
हाँ जी, सॉरी फॉर इंटरप्शन, प्रायोरिटी कॉल आ गई थी क्योंकि माय सिस्टम एडमिन वाज विद मी टू गिव मी दी ओके रिपोर्ट के जी हमने हॉस्टल में डाउनलोड ठीक हो गई है हमारी एंड स्टूडेंट्स आर मच सेटिस्फाइड देन यस्टरडे। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, ये मैंने बता रहा था फंक्शनल स्टाइल का, ठीक है जी। तो फंक्शनल स्टाइल प्योर फंक्शनल स्टाइल लैंग्वेजेस नहीं है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, लेकिन इनमें अब क्योंकि अब रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है फंक्शनल लैंग्वेजेस की, तो इसमें फीचर्स डाल दिए हैं, जावा में भी डाल दिए हैं और बाकी लैंग्वेजेस भी अपनी एनहांसमेंट्स कर रहे हैं। लेकिन फंक्शनल स्टाइल प्रोग्रामिंग बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल होता है और जनरली इसको मेरे ख्याल में बैचलर लेवल पे अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। ओके जी, तो not every problem fits into every style. So, being familiar with multiple style is essential for choosing the right solution for the given problem. Okay जी, patterns and architecture styles. Again an interesting style, क्योंकि जिस बुक से मैंने आपको रेफरेंस दिया उस बुक में डिफरेंट चैप्टर्स दिए हुए उन्होंने, तो दिस टेबल इज फ्रॉम दैट बुक। इसमें आर्किटेक्चर स्टाइल्स 4 तरह के उन्होंने बताए हुए हैं। फ्रॉम नेम ऑफ वन स्टाइल इज फ्रॉम मड टू स्ट्रक्चर, अदर वन इज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स, देन इंटरैक्टिव सिस्टम्स, then adaptable systems. So these are 4 different styles, architecture styles, और these are architectural patterns जो राइट साइड पे आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ से एक तो हमें ये पता चल रहा है कि आर्किटेक्चरल पैटर्न्स थोड़े से जो आर्किटेक्चर स्टाइल होते हैं वो बहुत हाई एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो जबकि आर्किटेक्चरल पैटर्न का कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा लेस एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होते हैं। और फॉर एग्जांपल ये टेबल ये बता रहा है कि जी फ्रॉम मड टू स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर स्टाइल में जो डिफरेंट पैटर्न्स यूज़ किए जा सकते हैं उसको अचीव करने के लिए, उनमें लेयर आर्किटेक्चर पैटर्न, पाइप एंड फिल्टर आर्किटेक्चर पैटर्न और ब्लैक बोर्ड आर्किटेक्चर पैटर्न्स कैन बी यूज टू create an architecture style with the name, with the concept from mud to structure. Again, distributed systems style अगर हमें बनाना है तो broker architecture pattern is the most appropriate one. And if we have to create some interactive systems, then model view controller or presentation abstraction controller architecture patterns are the most suitable. And if you want to create adaptable systems, then microkernel and reflection architecture patterns are the most suitable to develop or create adaptable systems. तो ये अगेन इट्स अ गुड स्लाइड जो कि हमें ये बता रही है कि आर्किटेक्चर स्टाइल्स का कॉन्सेप्ट ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट होता है, आर्किटेक्चर पैटर्न का लेस एब्स्ट्रैक्ट होता है, and multiple architecture patterns can contribute towards any particular architecture style. ओके जी, आगे हम चलते हैं। ये इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ हिस्ट्री, पैटर्न्स पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। यहाँ पे आपको ये जो ग्राफ शो कर रहा है कि ये कॉन्सेप्ट पैटर्न का स्टार्ट हुआ था 1990 से, और उसके बाद ये ऐसा पॉपुलर हुआ पैटर्न्स का कॉन्सेप्ट कि देन many patterns have been introduced over a period of time। और ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था फ्रॉम अ बुक डिज़ाइन पैटर्न्स एलिमेंट ऑफ रीयूजेबल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर। इसको देखकर फिर एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की बुक लिखी गई थी। ये डिज़ाइन पैटर्न की बुक है, डिज़ाइन पैटर्न। ये टर्म भी डिज़ाइन पैटर्न इसी बुक से इंट्रोड्यूस हुई थी। तो दिस कॉन्सेप्ट वाज वेल टेकन by the research community. Then immediately after some time, a book, Pattern Oriented Software Architecture, a system of pattern was written, and again it was a popular, very popular book। और इस तरह फिर बहुत से रिसर्च पेपर्स लिखे लोगों ने, कई किस्म के पैटर्न इंट्रोड्यूस किए। अभी आजकल अगर आप देखेंगे तो वेब यूजर इंटरफेस पैटर्न्स भी हैं,
और इस सब बेशुमार कई किस्म हर चीज़ के पैटर्न मिलेंगे आपको। तो बहरहाल ये एक थोड़ा सा आपको एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी देना मकसूद था इस स्लाइड में। Then it is again an interesting slide which depicts that not all patterns have the same depth. Different depths of patterns. Not all patterns have same depth, meaning that they don't address the same scope or scale of the problem. अब यहाँ पे तीन तरह के हम तीन लेवल शो कर रहे हैं, patterns at various level. The topmost level can be, we can say that architectural pattern is the topmost or highest level. Then design pattern is the second level and EDM is the lowest level of pattern. तो इसको थोड़ा सा एलोबरेट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। Architecture patterns define the structure of solution at highest level. These patterns influence the entire system and require all parts of the system that are touched by the pattern to participate in its design. For example, MVC, Model View Controller, is one of the example of architectural pattern. Now about something about design pattern. Design patterns solve individual design problems within a particular context. In pattern scope hierarchy, design patterns are medium scale patterns. For example, MVC, Model View Controller architecture pattern may introduce a tight coupling, creating problem if there are many views and controllers. तो MVC आर्किटेक्चर में अगर मल्टीपल व्यूज और मल्टीपल आर्किटेक्चर व्यूज और कंट्रोलर्स बनाएं तो उसमें टाइट कपलिंग आ जाती है। एंड डिजाइन पैटर्न कमांड प्रोसेसर एड्रेसेस दिस प्रॉब्लम। तो अब हम ये मीडियम स्केल पैटर्न यूज करते हैं एक आर्किटेक्चरल पैटर्न को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये हो गया एक कॉन्सेप्ट हो गया टॉप लेवल या हाईएस्ट लेवल का कॉन्सेप्ट हो गया आर्किटेक्चर पैटर्न। उसकी एग्जांपल हमने देखी मॉडल व्यू कंट्रोलर, और उसके बाद डिज़ाइन पैटर्न आ गया जिसकी हमने एक एग्जांपल देखी कमांड पैटर्न। कमांड प्रोसेसर इज अ काइंड ऑफ डिज़ाइन पैटर्न जो कि इसके अंदर यूज हो सकता है MVC के अंदर। एंड द थर्ड लेवल इज EDM. EDM is the lowest level pattern. EDMs have narrowest scope and are specific to a programming language or a platform, but they help you to get past these limitations. For example, use a left to right bit shift operation to multiply or divide by power of 2 if computer does not have multiplication function is one example of an EDM. तो ये जिनको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स थोड़ा थोड़ा याद है उनको समझ आ गई होगी क्या लिखा हुआ है। यानी कि हमने ये फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल 2 को हम लिखते हैं बाइनरी में 10, ठीक है जी, और 4 को लिखते हैं बाइनरी में हम 100, ठीक है जी, और उसके बाद 16 को लिखते हैं 1000। तो बेसिकली 4 is 2 raised power 2 and 16 is, ठीक है जी, 2 नहीं ये क्या ठीक लिखा ना मैंने, हाँ 2 raised to power, ठीक है 2 into 2 into 2 सर 4 है ए को 2 raised to power 4 हो जाएगा। 2 की पावर 4 है। 2 की पावर
2 इंटू 2 4 इंटू 2 की पावर 2, बिल्कुल सही है, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे हम बेसिकली बाइनरी शिफ्ट रजिस्टर की बात कर रहे हैं। बाइनरी शिफ्ट रजिस्टर में क्या है कि जी अगर आपने इसको डिवाइडेड बाय पावर ऑफ 2 करेंगे, फॉर एग्जांपल इसको हम 1000 है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 0, इसको शिफ्ट कर देंगे तो इट मीन्स मल्टीप्लाइड बाय पावर ऑफ 2, इसको एक और शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाइड बाय पावर ऑफ 2, ठीक है जी। तो ये जनरली अगर आपने वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह रिफ्रेश होगी तो वो आपको हो जाएगा। तो बहरहाल ये अब इतनी मकसद ये है, मैसेज ये है स्लाइड का कि इतनी डिटेल लेवल पे भी कुछ अगर आपने स्टैंडर्ड कोई सेट्स या प्रोसीजर्स बनाए हुए हैं तो दोज विल कम अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ ईडीएम, ठीक है जी। तो आई थिंक वी कैन हैव अ 10 मिनट्स ब्रेक, फिर हम अगला टॉपिक देखते हैं। राइट सर। ओके।